ऊपर टेबल पे पड़ा हुआ। जी हम स्टार्ट करते हैं। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। हालेलुया। जी स्टार्ट करें। जी मारिया आप स्टार्ट करें। यीशु मसीह के जलाली में उसके नाम को हम मुबारक करेंगे और खुदा के कलाम को सुनेंगे। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे, हम दुआ करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आंटी नुसरत से कि वो खुदावंद की शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें। Baruch atah Adonai Eloheinu Malkelim, Kadosh, 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 Adonai Eloheinu Chavin Yishabeshim Malad. Blessed are you, Lord God, King of the universe, Creator of heaven and earth. Heavenly Father, we give you thanks and praise for love, mercy, and grace and abundance. Thank you for this privilege once again that you've given us, Father, so we can gather here, we can worship you, we can glorify you, Lord. Thank you for all your abundance and goodness. Thank you for keeping us safe and sound, and thank you for your grace in the Holy Spirit. Thank you for everything, Lord. We give you thanks and praise for all our brothers and sisters who are present here, Lord. We pray for your blessing be upon us, Lord. We pray that, Father, that you come be present here, Lord. Bring your holy presence here, Lord. Pour your spirit onto us, Lord, and keep your holy presence into our homes, Lord, wherever we are. Bless us all and keep your holy presence into our homes and with us, and continue to pour your Holy Spirit with us, Lord. We're asking, Father, that God, yet you come and take charge of this whole programs, Lord. First, thank you for this wonderful ministry, that due to this ministry we are gathered here so we can all, as a church, worship, we can worship you, glorify you, Lord. We pray for blessing for this ministry. We're asking that this ministry be prosperous into your kingdom of God, for it to bring more people into to close to you, or more spirit. We're trying to, so you can reach through this ministry to many spirits, and they will become and attach, and they will become into your kingdoms, Lord, and they can all, and we pray for blessing for them who are here and who are not here. Once again, Father, that you, whoever's going to speak today, you will pour your spirit onto your servant, and they will speak. He will speak through the Holy Spirit. He will speak your words, and you will put your words into his mouth. Whatever you like to him to speak today, you will fill him with your spirit, O Lord Jesus Christ. Once again, Father, we're asking that you come and be present here, Lord, and accept our prayers and thanksgiving into your mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. आमीन आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं होली सिटी मिनिस्ट्री के लिए। खुदावन ने इस मिनिस्ट्री को कायम किया ताकि हम सारे मिलके इसके थ्रू हम खुदावन का काम कर सकें, खुदावन की प्रस्तिश कर सकें और खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। हम प्रस्तिश करेंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है आंटी नसरीन से कि वो खुदावन की प्रस्तिश में कोई भी गीत या ज़बूर वो गाना चाहती हैं वो गाएं। माइक बंद है। माइक ऑन। जी खुदा की वर्शिप में हम गीत गाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त गीत है और हमें बहुत पसंद है, ये हम गाते हैं बहुत ज़्यादा। तो बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत। बुलंदियों पर है तू मुबारक
अजीम बर्तर, तेरी सिताइश हर जुबां पर है तो मुबारक अजीम बर्तर, तेरी सिताइश हर जुबां पर है शुक्र हम्दो सना का महवर, तेरी परस्तिश तेरी इबादत, बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, जमीन पर नेक दिल सलामत, बुलंदियों पर मसीही कलमा खुदा का तू है, गुनाहगारों की आरज़ू है। मसीही कलमा खुदा का तू है, गुनाहगारों की आरज़ू है। नजात इंसान की आबरू है, मिटा दे हर एक बदी की लानत, बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, जमीन पर नेक दिल सलामत, बुलंदियों पर शाहे बका तो यमी खुदा का है, तू ही कदूस पाक तन्हा। शाहे बका तो यमी खुदा का है, तू ही कदूस पाक तन्हा। मकाम आली अजीम तेरा, फलक पे रूहों खुदा में वहदत, बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, जमीन पर नेक दिल सलामत, बुलंदियों पर। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और आंटी नुसरत के साथ मिलकर खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। नहीं, हम पहले फयाज भाई और कार्मलीना पहले करें वर्शिप, फिर मैं करूंगी। ठीक है, ठीक है, पादरी साहब के साथ मिलकर। हाँ जी, हम गीत गाएंगे, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, तो आप सब भी गाएं जी। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आज भी पापों को धोता है, वो आज भी पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो कोड़ियों को पाक करता है, वो कोड़ियों को पाक करता है, और मुर्दे जिंदा करता है, और मुर्दे जिंदा करता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो अंधी आँखें खोलता है, वो अंधी आँखें खोलता है, और लंगड़ों को चलाता है, और लंगड़ों को चलाता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। आमीन।
हालेलुया। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे, आंटी नुसरत के साथ मिलकर हम खुदा उनकी प्रस्तुति करेंगे। खुदावन का शुक्र है, खुदावन में आप सबकी सलामती हो। May His grace and Holy Spirit peace be with you, with us all, and continue to stay His holy presence with our true Holy Spirit. गीत जो मैं गाने जा रही हूँ उसका नाम है मुक्ति दिलाए यीशु नाम। ये गीत हमारे साउथ एशियन चर्च में बड़ा गाया जाता था। हमारे फादर जो थे वो फिजी के थे, तो उनको ये गीत बड़ा पसंद था और हम हमेशा जब भी चर्च जाते थे सबसे पहले यही गीत गाते थे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ है बलिदान, यीशु हुआ है बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी महान, हम हैं पापी महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Hallelujah. Praise you, Lord Jesus Christ. Thank you. Thank you. Praise you, Lord. हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो। यीशु नाम ही मुक्ति दिलाता है, निजात दिलाता है, हमें रहाई बख्शता है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। और अब हम एक कोर्स गाएंगे फ्रोबल के साथ मिलकर, उसके बाद खुदा की आवाज को सुनेंगे। हालेलुया। तूफानों से ना घबराना, मुश्किल में बात न जाना, तेरे साथ है मैं सिर पे लगाना। तूफानों से ना घबराना, मुश्किल में भाग न जाना, तेरे साथ है मसीहा, बस
आके उस पे लगाना, खून का एक कतरा मेरी खातिर बहा हो रहा, बाहें फैला के सुने अपनी जान लुटा हो रहा, खून का एक कतरा मेरी खातिर बहा हो रहा, बाहें फैला के सुने अपनी जान लुटा हो रहा, बाहों में उसके आना, सर कदमों में उसके झुकाना, तेरे साथ है मसीहा, बस आके उस पे लगाना, तूफानों से ना घबराना, मुश्किल में बात न जाना, तेरे साथ है मसीहा, बस आके उस पे लगाना, वादा किया है उसने तेरा साथ ना छोड़ूंगा मैं, दुनिया चाहे छोड़ जाए तेरा हाथ ना छोड़ूंगा मैं, वादा किया है उसने साथ छोड़ूंगा ना मैं तेरा, सारी दुनिया चाहे छोड़ जाए हाथ छोड़ूंगा ना मैं तेरा, बस प्यारे नाम से बुलाना, हर खतरे से लड़ जाना, तेरे साथ है मसीहा, बस आके उस पे लगाना, बस प्यारे नाम से बुलाना, हर खतरे से लड़ जाना, तेरे साथ है मसीहा, बस आके उस पे लगाना, तूफानों से ना घबराना, मुश्किल में भाग न जाना, तेरे साथ है मसीहा, बस आके उस पे लगाना, बस आके उस पे लगाना, बस आके उस पे लगाना, बस आके उस पे लगाना। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। हमारा खुदावन हमारे साथ है, उसके वादे हमारे साथ हैं, उसका कलाम हमेशा हमें कुव्वत बख्शता है, उसका कलाम हमेशा हमें अपलिफ्ट करता है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके वादे हमेशा हमें संभाले रखते हैं। हम दुआ करेंगे खुदा के खादिम के लिए, खुदा के कलाम के लिए। हालेलुया, खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तो हमेशा हमारे साथ है, हमें संभाले रखता है खुदावन। तू हमारे तूफानों में हमारे साथ होता है खुदावन, तू हमें हमेशा थामे रखता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम के लिए। तेरा कलाम हमारी सिपर, हमारी ढाल है खुदावन। जब हम कमजोर होते हैं, हम खुदावन बेदिल हो जाते हैं, तेरा कलाम हमें खुदावन संभाले रखता है खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खादिम के लिए। जब तेरा कलाम हमें सुनाते हैं, तेरी आवाज को तेरे लोगों तक पहुंचाते हैं, तो खुदावन का मुंह बनना, तेरा रूह कुछ रहनुमाई करे खुदावन। और आज तेरा कलाम नाजिल हो, जिंदगियां आजाद हों, बहाल हों इस कलाम के वसीले से। और खुदावन जिंदगियां खुदावन तुझे अपना मुनज्जी, अपना खुदावन मानने वाली बने खुदावन। तेरे कलाम के वसीले से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा शुक्र हो, मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। अब मैं दावत दूंगी पादरी साहब को, पास्टर फयाज साहब को, कि वो आए और खुदा के कलाम को शेयर करें। हालेलुया। मसीह यस्सु के फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम और आप सबकी सलामती हो। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का जिसने ये मौका फराहम किया। और इसके साथ साथ मैं जो हमारे फाउंडर हैं सिस्टर नसरीन
होली सिटी मिनिस्ट्री की उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये दावत दी कि मैं कलाम सुनाऊं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो खुदा के खादम होते हैं, कलाम सुनाने वाले होते हैं, खुदा का पैगाम देने वाले होते हैं, वो जो है उसमें कोई छोटे या बड़े ऐसी कोई बात नहीं होती, ना होनी चाहिए, ना उसमें कोई नस्ब नामे, मेरा दादा, मेरा नाना, मेरा बाप पास्टर था, ऐसी कोई, ये खुदा का चुनाव बहुत ही वंडरफुल है और हम सारी चीजों को पाक कलाम में बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। और आज जब हम गीत गा रहे हैं, यसु नाम में कुदरत पाई जाती है, हम गीत गा रहे हैं, मुक्ति दिलाए यसु नाम, और कोर्स गाया, और फिर मारिया जब दुआ कर रही है तो कहती है कि जो हमारा निजात देंदा है। और हम यहाँ पर जो आज कहानी सुनेंगे, जो बाइबल में से वो कहानी सुनेंगे, जो जिंदा कलाम में कहानी लिखी हुई है, उसमें भी एक निजात का अमल बयान किया गया है। कैसे हम निजात पाते हैं, हमारा मनज्जी कौन है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। और सारी बातों में हम देखते हैं कि हम जब कलाम को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, अनाजील को पढ़ते हैं, तो हम अपनी निजात की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम अपनी अब्दी जिंदगी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह जब अब्दी जिंदगी की बात करता था तो फक्की, फरीसी, काहिन जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ बोलते थे, फतवा लगाते थे, कहते थे इख्तियार तुम्हें किसने दिया है। और हमें जो है अपने आप को पीछे करना है, खुदावंद को आगे रखना है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी को आगे रखना है। मैं देखता हूँ जब हम जर्मिया का सहीफा पढ़ते हैं, उसमें से सीखते हैं, तो वहां पर जब जर्मिया नबी नबूवत करता है, जब जर्मिया नबी खुदावंद की बातें लोगों को बताता है, तो वो ये कहता है, वो ये नहीं कहता कि मैंने फरमाया, पाक कलाम में लिखा है, वो कहता है तू कह के खुदा ने फरमाया है। आज जब मारिया ने दुआ की है तो उसने कहा है कि खुदा का खादम न बोले, बल्कि उससे तेरा पाक रूह के बोले, अल्फाज की तरतीब दे, उस अल्फाज का जिम्मा ले। और जब मैं देखता हूँ मेरे साथ जो खादम बैठे होते हैं, खादमाएं बैठी होती हैं, जब वो दुआएं मेरे लिए करती हैं, तो मैंने कभी भी शायद ये मेरी हैबिट में या ऐसे मेरे रूम में आ गया है, तो मैं खुद से दुआ नहीं करता, इसलिए कि मुझे कामिल इत्मीनान और भरोसा होता है कि जब मेरे बहन भाइयों ने, मेरे खादम बहन भाइयों ने मेरे लिए दुआ की है, तो खुदावंद का रूह, खुदावंद का मसा जो है मेरे साथ है। और फिर जो खुदा के खादम, खुदा के बंदे होते हैं, वो खुदा के मसा में रहते हैं, ग्लोरी ऑफ गॉड में रहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड रहते हैं, और वो सब कुछ आप जानते हैं। और हम आज यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब, वहां से हम सामरी औरत की कहानी को सीखते हैं और कहानी को पढ़ते हैं। इस कहानी को बहुत सारे लोग पहले से जानते हैं, और आज जो मेरे बहन भाई और आज जो मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर जो होली सिटी मिनिस्ट्री के चैनल से इस कलाम को सुनेंगे, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि खुदा उन्हें बरकत दे, खुदा उन्हें निजात का रास्ता दिखाए। बेशक वो पहले से बाइबल को जानते हैं, पहले से वो इस कहानी को जानते हैं, लेकिन आज फिर वो एक दफा फिर अपने ईमान को ताजा करेंगे, इस कहानी को ताजा करेंगे, और अपने अंदर जो है निजात की प्यास उसको महसूस करते हुए अपनी तृष्णगी को, अपनी प्यास को दूर करेंगे। तो आइए मेरे साथ थोड़ा सा मैं इस सवाल को पढ़ूंगा और फिर हम इस सवाल को सीखेंगे पाक कलाम को। पाक कलाम में लिखा है यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 5 आयत में, बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है, वो इस कित्ता के नजदीक है जो यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और यकूब का कुआं वहीं था। चुनाचे यस्सु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यस्सु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मूल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यस्सु ने जवाब में से कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन।
हम यहाँ पर देखते हैं इस कलाम में, इस कलाम को हम आगे भी पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। ये एक लंबी कहानी है, लेकिन मैंने आपको कहानी के शुरू से 10, 11, 12 आयतें पढ़कर सुनाई है ताकि एक तारफ हो सके कि हम कहाँ से बात कर रहे हैं, हम पाक कलाम के कौन से हिस्से में हैं जहाँ से हम ये बात कर रहे हैं। तो सामरी औरत की कहानी है और हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है जब थका मांदा जा रहा होता है तो वो सामरिया में आता है। सामरिया में जब आता है तो वहां पर एक कुएं के पास जब वो एक औरत को देखता है, वहां पर थोड़ी देर के लिए बैठता है और उसी वक्त में हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं उनको भूख लगी है और वो खाना लेने के लिए शहर में जाते हैं। और हम जो पिछले हम इक्तबासात पढ़ते हैं अंजीलों में, वहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु जब भी कहीं से गुजरता है तो किसी एक खास शख्स के पास जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह नासरी यरू जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक नबीना से मिलते हैं, जब आगे चलते हैं तो फिर जकई से मिलते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो सामरिया के रास्ते से होते हुए जा रहे हैं तो वहां पर वो थक कर बैठ जाते हैं और कुएं पर एक औरत पानी भरने आई है। और खुदा यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो चूंकि उसके पास नहीं है तो खुदा यीशु मसीह जो है यहाँ पर एक गुफ्तगू का आसरा लेते हैं, एक बहाना लेते हैं। और पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि कभी कभी हम कुछ आर्गू करते हैं, हम गुफ्तगू नहीं करते, हमें चाहिए हम टाक करें, एक दूसरे को जाने। तो वो खुदा यीशु मसीह उससे पानी मांगता है और वो औरत जो है आगे से एक बात करती है, एक रीजन करती है, कहती है आप यहूदी होकर मुझसे पानी मांगते हो। सामरी और यहूदी तो आपस में कोई मेल जोल नहीं रखते, उनका तो आपस में कोई मेल जोल नहीं है, आपस में एक दूसरे को कबूल नहीं करते। आज हम देखते हैं कि ऐसी बातें जो है कलीसिया में बहुत सारे लोगों में पाई जाती हैं, बहुत सारे खादों में पाई जाती हैं, जो सेल्फ मेड बैरियर हैं, जो मैन मेड बैरियर हैं, खुदा की तरफ से नहीं है। हम कभी कभी कहते हैं ये तो फलां जिले का है, ये तो फलां गांव का है, ये तो फलां मुल्क का है, या हम इस तरीके से सोचते हैं ये बहुत गरीब है, इनसे हम नहीं मिल सकते। फलां शख्स बहुत अमीर है, हम उससे नहीं मिल सकते। फलां शख्स अनपढ़ है, उसके पास तालीम नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, हमें उनसे नहीं मिलना चाहिए। फलां शख्स जो है वो गुनाहगार है, हमें उससे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यीशु की तालीम बड़ी फर्क थी। हम देखते हैं कि पाक कलाम में लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और गुनाहगारों को निजात देने आया है। और जहां पर भी यीशु मसीह का एक ऐसा किरदार है, एक ऐसी औरत से बात कर रहे हैं, एक ऐसा रोल है कि उसको कहते हैं मुझे पानी पिला, आई वांट टू ड्रिंक वाटर, गिव मी ड्रिंक। और वो कहती है सामरी औरत हूं मैं यहूदी को पानी कैसे दूं। लिहाजा उनके दरमियान एक डायलॉग शुरू होता है, एक मुकालमा शुरू होता है, एक गुफ्तगू शुरू होती है। और हम देखते हैं कि इस गुफ्तगू में फिर जब आगे बात बढ़ती है और यीशु मसीह कहते हैं, और ये जो कुआं है याकूब का कुआं है, और याकूब जो थे और उसने अपने खरीद कर या बनाकर अपने बेटे यूसुफ को दिया। और ये कुएं की बड़ी इंपॉर्टेंस है। हम देखते हैं कि जिंदगी में पानी की बहुत अहमियत है। और अगर हम शुरू में देखते हैं पैदाइश में तो वहां पर लिखा है कि खुदा का रूह पानियों पर जुम्बिश करता था। और ये जो पानी है, ये कदरे जो आम इलाकों में पानी पाए जाते हैं उनसे अच्छा और साफ है, पीने के लिए सेहतमंद है। इसलिए क्या होता है कि सामरी जो गांव है वहां की औरतें वहां पर पानी भरने के लिए आती हैं। और ये आम तौर पर एक ऐसा रस्म और रिवाज था उस बियाबान में, इस शहरों में, कि जब कोई शख्स सफर करता या गांव से बाहर दूसरे गांव की तरफ जाता तो अपने पास जो था कोई ऐसी छोटा मशकीजा रखता जिससे वो अपनी पानी की जरूरत को पूरा कर सकता, या अपने साथ कोई ऐसा डोल और रस्सी, अगर कहीं रास्ते में कोई कुआं मिल जाए तो वहां से वो पानी निकाल सके। लेकिन यहाँ पर हम एक आयत पढ़ेंगे ताकि हम आगे बढ़ सके। थकामंदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने से कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मूल लेने गए थे। उस सामरी औरत ने से कहा कि तो यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किस तरह का बर्ताव नहीं रखते। और फिर जो है वो यीशु ने जवाब में से कहा कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत
क्वेश्चन करती है। औरत ने उससे कहा, सामरी औरत ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरियों से क्यों पानी मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी किस्म का बर्ताव नहीं रखते। सॉरी, ये आयत है 11वीं। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावन, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ नहीं और कुआं गहरा है। वो एक यीशु से क्वेश्चन करती है, तेरे पास तो कोई डोल नहीं है, कुआं तो बहुत ज्यादा गहरा है, हो सकता है 100 फुट हो सकता है 60 फुट हो, या से ज्यादा हो, तू कुएं से पानी कैसे निकालेगा। वो यीशु पर एक सवाल करती है, लेकिन वो यीशु को जानती नहीं है, वो यीशु को पहचानती नहीं है कि ये यीशु है, ये यहूदियों का बादशाह है। वो यीशु को एक आम आदमी, एक आम मुसाफिर के तौर पर जानती है, लेकिन उसको इतना पता है कि ये यहूदी है और मैं सामरी हूं। और फिर आगे हम पढ़ते हैं, क्या तुम्हारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद ने और उसके बेटों ने, इसके मवेशी ने उसमें से पिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा सवाल वो करती है, अपने बाप के बारे में बताती है, अपने बाप दादा के बारे में बताती है कि क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है। और यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसकी 53 आयत में भी हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह यहूदियों से बातें करता है, यहूदियों से गुफ्तगू करता है, यहूदियों से गुनाह माफ करने की बात होती है, मौजूद की बात होती है और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, तो वहां पर वो कहते हैं, हमारा बाप इब्राहिम जो मर गया है, क्या तू उससे बड़ा है। और खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं तो उसके पैदा होने से भी पहले था। और ऐसी बातें हैं। और जहां पर वो कहते हैं, क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है। 8 बाब में, यूहन्ना की इंजील 8 बाब से 53 आयत में, वो जो यहूदी है, फकीह फरीसी हैं, वो कहते हैं, क्या तू हमारे बाप इब्राहिम से बड़ा है। तो खुदा यीशु मसीह को इस तरह से लोग जो हैं नहीं पहचानते कि वो यीशु है, वो निजात देता है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा यीशु मसीह का लेवल और एक जिस्मानी लोगों का लेवल बहुत फर्क है। बेशक खुदा यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा है, और वो रूहानी बातें भी करते हैं और साथ साथ जिस्म में आकर लोगों की तरह, लोगों में मिलकर, लोगों में शामिल होकर, लोगों के साथ होकर, लोगों में रहकर लोगों की बातें भी करते हैं, उनके दुखों को भी जानते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को भी जानते हैं और उनकी जिंदगी को भी जानते हैं। और इसी तरह जब वो कहती है कि तेरे पास कोई डोल नहीं है, तू मुझे कहां से पानी पिलाएगा, तो यीशु मसीह फिर कहते हैं, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता और तुझे कभी भी प्यास ना लगती, हमेशा अब्दियत का पानी तू हासिल कर सकती और सारी जिंदगी कभी तुझे प्यास ना लगती। तो फिर वो थोड़ा सा कहती है कि हाँ, मुझे वो पानी दे, मुझे वो पानी पिला जो पानी तेरे पास है, मैं पीना चाहती हूँ। वो थोड़ी सी अपनी विलिंग दिखाती है। और फिर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह उसे कहते हैं, उस खुदा यीशु मसीह जो सब कुछ जानते हैं, उसे कहते हैं, अच्छा अगर तू पानी पीना चाहती है तो अपने शोहर को बुला कर ला। तो वो कहती, मेरा कोई शोहर नहीं है, मेरा कोई खामद नहीं है। खुदा यीशु मसीह कहते हैं, तूने खूब कहा, तू सही कहती है, इसलिए कि तू इससे पहले 5 शोहर कर चुकी है और जिसके पास अब तू रहती है वो भी तेरा शोहर नहीं है। और जब खुदा यीशु मसीह ना से ये बातें करते हैं तो मुझे लगता है तू तो नबी है, तू तो मेरे बारे में सब कुछ बताता है। और हम देखते हैं कि गुफ्तगू और एक दूसरे के साथ जानना, एक दूसरे को मिलना, एक दूसरे की जिंदगी में कुछ सवालात करना, हम एक दूसरे के क्लोज करते हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे को पहचानते हैं। और यहाँ यीशु जो है वो भी उसको जानता है और वो कहते तू तो नबी है। ये हम पढ़ेंगे इस आयत को, पाक कलाम में लिखा है, ये है 17वीं आयत, 17वीं आयत। औरत ने जवाब में से कहा, मैं बेशोहर हूँ। यीशु ने से कहा, तूने खूब कहा, मैं बेशोहर हूँ, क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शोहर नहीं, ये तूने सच कहा। और उनसे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। फिर बात होती है मजहब की। समार्टन लोग जो थे वो अपना मजहब अकीदा थोड़ा फर्क रखते थे, वो अपना चर्च, अपनी हैकल फर्क रखते थे। और यहाँ पर लिखा है कि औरत ने कहा, हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तुत की, 20वीं आयत है, हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तुत की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तुत करना चाहिए यरूशलेम में है। यहाँ पर भी थोड़ा वो फेथ का
जो है डिफरेंस जो है शो करती है कि हम सामरी हैं, हम इस पहाड़ पर प्रस्तिश करते हैं, तुम यहूदी हो, तुम्हारे जो बाप दादा वो कहते हैं यरूशलेम पर जाकर प्रस्तिश करेंगे। तो फिर यीशु क्या जवाब देता है? यीशु ने इससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन करो कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। और फिर यहाँ पर खुदा यीशु नासरी उसको बताते हैं कि निजात जो है यहूदियों में से है। यरूशलेम पर भी प्रस्तिश नहीं करोगे, जिस पहाड़ पर तुम जाते हो वहां पर भी प्रस्तिश नहीं करोगे। तो कैसे प्रस्तिश करोगे? ये नेक्स्ट आयत में हम देखते हैं, पाक कलाम में लिखा है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। तो मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, हम जो रूह में चलने वाले लोग हैं और जो खुदा को रूह मानते हैं और जो यीशु मसीह को होली स्पिरिट मानते हैं, वो ना यरूशलेम में इबादत करेंगे, ना उस पहाड़ पर, ना किसी पहाड़ पर। वो अपने अपने रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करेंगे, अपने घरों में, अपने दिलों में। पाक कलाम लिखता है कि तुम खुदा का मक़दस हो, खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है। जब रूह बस जाएगा हमें, जब आप खुदा के पाक रूह को ले लोगे, तो फिर आप जिस जगह भी खुदा को याद करोगे, जिस जगह भी खुदा की इबादत करोगे, खुदा वहीं से आपकी इबादत को सुनेगा, वहीं से आपकी प्रस्तिश को सुनेगा, वहीं पर खुदा जो आपके लिए बरकत को जारी करेगा। तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। हमें जरूरी है कि हम परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। 25वें आयत में कहती है, औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्तस कहलाता आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। वो ईमान रखती है, उसको पता है, वो भी जानती है, जैसा कि बहुत सारे यहूदी भी कहते हैं कि मसाया आएगा। वो कहती है मसाया आएगा तो वो हमें सब कुछ बताएगा। यीशु से कहता है कि मैं तेरे सामने हूं, मैं तेरे से बात कर रहा हूं, लेकिन अभी तक भी वो यीशु को नहीं पहचानती, अभी तक भी वो यीशु को उस तरीके से नहीं जानती कि वो यीशु को निजात दहिंदा कबूल कर सके। लेकिन आगे फिर हम देखते हैं कि यीशु ने से कहा, मैं तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। इतने में शागिर्द आ जाते हैं, औरत जो है अपना घर वहीं छोड़ती है और जाती है गांव में, देहात में, अपने लोगों के पास, और उनको बताती है, देखो एक ऐसा आदमी, एक ऐसा शख्स जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, मुमकिन है ये मसीह हो। और हम देखते हैं कि ये औरत जब यीशु से हम कलाम होती है, जब यीशु से गुफ्तगू करती है, जब यीशु से बातें करती है, तो अपने अंदर इत्काद लेके आती है कि ये यीशु मसीह है, ये नबी है, ये मसीहा है। फिर गांव में जाकर लोगों को बताती है। हम देखते हैं कि औरत ने फिर एक रसाल की किरदार अदा किया, रसूलों जैसा किरदार अदा किया, कि सबको जाकर बताया कि तुम भी आकर यीशु नासरी को देखो, वो वहां कुएं पर मौजूद है, उसने मुझसे ये बातें की हैं, उसने मुझे ये कहा है कि मैं तुझे जिंदगी का पानी दूंगा। और वो क्या करते हैं, सब लोग आते हैं। पाक कलाम में लिखा है सॉरी आओ 29वीं आयत है, 29 वर्ष, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही हो? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरखास्त करने लगे, क्या रब्बी कुछ खा ले। लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। पांच शागिर्दों ने आपस में कहा, क्या उसके लिए कुछ खाने को लाया जाए। बहरहाल यीशु जो है वो खाना भी नहीं खाता, लोग भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा 39वीं आयत को पढ़ेंगे आखिर पे जाके, इसलिए कि ये थोड़ा इक्तबास लंबा है। आप घर में इसको बैठ के पढ़िएगा, इसको देखिएगा, इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा। और 39 वर्ष में लिखा है, और उस शहर के बहुत से
सामरी उस औरत के कहने से जिसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, उस पर ईमान लाए। पर जो सामरी उसके पास आए तो उसे दरख्वास्त करके कहने लगे कि हमारे पास रह। चनाचे वो दो रोज वहां रहा और उस कलाम के सबब से और भी बेतेरे ईमान लाए। और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाए, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फील हकीकत दुनिया का मनजी है, ये दुनिया का मनजी है। और हम देखते हैं कि जब ये औरत एक रसालती किरदार अदा करती है और लोगों को भी बुलाती है और लोग खुद भी मिलते हैं और लोग जान जाते हैं, फिर यीशु को अपने घर, अपने पास, अपने गांव में 2 दिन रहने की दावत देते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये जो है फी हकीकत दुनिया का मनजी है। और हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह नासरी जो है दुनिया के निजात दहिंदे हैं, दुनिया पर रहम करने वाले हैं, हमेशा की जिंदगी देने वाले हैं, कसरत की जिंदगी देने वाले हैं। और वो बहुत सारी ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम जो है इंसान इस दुनिया में रहते हुए अपने किरदार को इस तरह से बनाते हैं, शायद हम कभी किसी को माफ करना नहीं चाहते। हम जो है कभी कोई हमारे खिलाफ एक बात कर दे तो हम उसे बहुत सारी बातें जो है सुनाना चाहते हैं, लेकिन जो खुदा यीशु मसीह जो हमें सिखा रहे हैं वो ऐसा नहीं है। फिर ऐसे जो बैरियर्स हैं, खुदा यीशु मसीह नासरी जो है इन बैरियर्स को खत्म करते हैं और वो हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का पानी और अभी रोटी और अपना बदन तोड़ते हैं और हमारे लिए सारा मंसूबा जो निजात का बनाते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी जो है हासिल कर सकें। और हम देखते हैं कि कहीं भी खुदा यीशु मसीह ने गुनाहगारों से और ऐसे लोगों से जो गुनाह की जिंदगी में थे उनसे परे नहीं हटे, बल्कि उनको गले लगाया। आज अगर हम खुदा के खादम हैं, अगर हम खुदा के कलाम की खिदमत करना चाहते हैं, तो हम पर भी ये जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को मिले, ऐसे लोगों के पास जाएं जिनको यीशु मसीह नासरी की जरूरत है, जिनको कलाम सीखने की जरूरत है। हम किसी को धत्कारे नहीं, ये कहकर कि ये गरीब है, ये गुनाहगार है, ये अनपढ़ है, ये कैथलिक है, ये एफडीए का है, ये फलां मिशन का है। ये मिशन जो है मिशने ये भी मैन मेड बैरियर्स हैं। मैं नहीं समझता कि खुदा ने या जो मसीहत की बुनियाद है वहां से कोई ऐसी बातें शुरू हुई हों। लिहाजा हमें चाहिए कि हम खुदा यीशु मसीह की तालीम को फॉलो करें, वो हमारा निजात देता है, उसकी निजात को माने, अपने ईमान को मजबूत करें, उसके कफारा को समझें, ताकि हम भी अपनी जिंदगी में हमेशा का जिंदगी का पानी हासिल कर सकें, हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकें। मेरे अजीजों, हमें जो है चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को, पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी की तरफ आएं और पुरानी जिंदगी से तौबा करते हुए खुदा यीशु मसीह के फॉलोअर्स बनकर जो है तौबा का बपतिस्मा लें। हम देखते हैं कि जो इसकी पहली आयत है, 4 बाब की पहली आयत है, यूहन्ना की इंजील 4 पहली है, वहां पर लिखा है कि लोगों ने देखा कि खुदा यीशु मसीह से लोग जो है ज्यादा बपतिस्मा लेते हैं। यूहन्ना की निस्बत खुदा यीशु मसीह से बपतिस्मा जो है लोग ज्यादा लेना पसंद करते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह नासरी जो थे वो खुद बपतिस्मा नहीं देते थे, उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे। फिर हमें चाहिए हम ऐसी फिक्र में भी ना पड़े, हम तौबा का बपतिस्मा लें, ताकि खुदा यीशु मसीह ने ये मनादी की कि तौबा का बपतिस्मा लो, पतरस रसूल ने ये मनादी की कि तौबा का बपतिस्मा लो। आज हमें इस चीज की जरूरत है कि हम तौबा का बपतिस्मा लेकर अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी में आए और खुदा यीशु मसीह को अपना निजात देना कबूल करते हुए उस पर पूरा ईमान लेते हुए उसके फॉलोअर्स बन जाएं। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन। 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 खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो इस मैसेज के लिए, सरमन के लिए। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आंटी नुसरत से कि वो खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी करें। Thank you, Heavenly Father, once again that you've given us opportunity so we can come before the throne of grace, boldly approach your throne of grace, Father, that you've given us a wonderful message, a wonderful word that your servants, you spoken through your servants to us, Lord, directly, so we can apply it to our life, and we will be non-judgment towards other denominations, and we should just repent and come to and enter into your kingdoms and turn away from our man-made barriers and
let those man-made barriers be removed into your powerful name of the Lord Jesus Christ, because Father, that you are the righteous God. You do not do favoritism anybody's. You only like the righteous, and you only love the righteous. And Father, we don't know where we stand into your eyes, but we continue to repent for our mistakes, and we're asking that you forgive us all mistakes and continue to open our spiritual eyes so we can recognize and we can learn to respect other peoples and other denominations too, because you said you are the vine, I am the vine, you are my branches. And Father, that you also said that every fruit will be recognized by their fruit, and if a tree will not bring the fruit, will be cut down and put into the fire. Father, we don't want to be that fruit. We don't want to be that tree. We want to worship you. We want to work for your kingdoms, Lord. And Father, we are humbly coming onto throne of grace, and we're repenting our mistakes today, and we are repenting if we have done anything wrong today through our words and action and thought, deed, that you forgive us all and have mercy upon us, Lord, and be with us and mercy upon our soul. Continue to open our spiritual eyes and brain and give us a wisdom and knowledge, and to give us more understanding and the revelation of your word, Lord, so we can understand and apply into our life, Lord. Once again, Father, for all we are present, say, Lord, we pray for your blessing be upon the wicked, that you open our brain to wisdom and knowledge and discernment, so we can distinguish between what is good or what is right into your eyes and what is not right into your eyes, and we can apply into our life, and we can bear 100% fruit into our life. And I'm praying for those people. I'm trying to reach far those people who will be hearing this message today, that you penetrate their spirit and their heart, Lord, and you open their spiritual eyes too, so they can acknowledge these things, Lord, and they can come into for their salvation and for your kingdom's sake, for glorious name's sake. We're asking in the mighty name of the Lord Jesus Christ that you hear all our prayers and petition for your kingdom's sake, for glorious name's sake. Amen. Amen. आमीन। अब वक्त है कि हम अपनी कोई जो टेस्टमनी है कोई भी देना चाहता है तो वो दे। किसी के पास कोई गवाही हो तो वो शेयर कर सकता है। आप उन लोगों के लिए गवाही दें जिन लोगों के लिए हम पिछले दिन दुआ करते रहे हैं, तो उनके बारे में बताएं कि वो उनके कैसा है पिछले दिनों जो हमें प्रेयर रिक्वेस्ट मिली थी। जी, आज हम गए थे, अंकल जो हैं वो अदील जो है ना बच्चा जिसके लिए हम दुआ कर रहे थे, उसके पापा को भी प्रॉब्लम हुआ था। पहले हार्ट अटैक पहले एक बार हो चुका था, तो दोबारा से वो प्रॉब्लम बना। तो आज मैं और शोबल दोनों गए थे उनके घर, तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो, वो घर बैठे हुए थे और बड़े मतलब एक्टिव और शुक्रगुजारी कर रहे थे खुदा की कि खुदा ने उन्हें मतलब सेहत दी है। मेडिसिन तो यूज कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल से आ गए हैं छुट्टी लेकर, तो काफी पहले से बेहतर हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए, और हम सबकी दुआओं को खुदा ने सुना है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। उनका बाईपास हो गया कि नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ ना, तो क्योंकि वैसे वो मेडिसिन वगैरह यूज कर रहे हैं, लेकिन आ गए हैं घर, मतलब छुट्टी लेकर आए हुए। तो कहते हैं कि मेरा वहां पे मतलब प्रॉब्लम है, मैं ज्यादा लेट नहीं सकता। तो डॉक्टर ने भी चेक किया, कहते काफी देर मतलब सोए हुए थे, क्योंकि सीधे लेटना मुश्किल था उनके लिए। तो बता रहे थे कि डॉक्टर ने कोई आधा घंटा कहते मेरी वीडियो बनाई, सो रहा था जब मैं मुझे बाद में दिखाई, तो कहते कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि लेटने से प्रॉब्लम होता था दिल का ना। तो कहते काफी देर मतलब देखते रहे, बनाते रहे वीडियो के मतलब क्या हो, तो कहते कुछ भी नहीं हुआ। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी इस बात के लिए कि बेहतर है। Praise the Lord. Hallelujah. God will heal him completely. मीना की अम्मी भी बेहतर है बहुत। ये कोरोना पॉजिटिव था उनका। फिर मेरे भाई का जो बेटा था रसा का, उसका कोरोना पॉजिटिव था, अभी बेहतर हैं। और काफी सारे लोग जो ऐसे पॉजिटिव में थे, हम सब ने मिलकर दुआ की। खुदा उनका शुक्र है वो बेहतर हैं, ठीक हैं। तो सारा ऑनर, सारा इज्जत और जलाल खुदा उनके नाम को आता है, और हम दुआओं के वसीला से खुदा ने उन्हें शिफा दी है।
खुदा की खुदावंद का शुक्रगुजारी शुक्र है। आमीन। हम मजीद आमीन। दुआएं करेंगे। अभी किसी की रिक्वेस्ट है, प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो दे सकता है, तो उसके लिए भी हम दुआ करेंगे। एक बहन है कलसूम, आज मैं विजिट पे गया था कुछ फैमिलीज में, तो उसने कहा मेरे लिए दुआ करें, वो उसको फाइनेंशियली है इशू, तो मैंने कहा था खुदावंद ठीक करेगा। फिर इस तरह एक भाई एरिक हैं, उनके लिए सेहत और ऐसे तंदुरुस्ती के लिए दुआ करनी है। उसकी बहन ने रिक्वेस्ट दी थी, मुझे कहते थे पास्टर साहब दुआ करना, तो मैंने कहा मैं भी दुआ करूंगा और हमारे जो होली सिटी मिनिस्ट्री के सारे खादम खादमाएं मिलकर वो भी दुआ करेंगे, तो प्लीज उनके लिए भी दुआ करें। और सेम हमारी जो रिक्वेस्ट हैं पहले वाली, पाकिस्तान, इंडिया के लिए और बाकी ममालिक के लिए भी हम दुआ करेंगे कि खुदावंद महफूज रखे इस सारे वक्त में। मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन खुदावंद हमारे साथ है, हमें घबराना नहीं है। खुदावंद हमारी सिपर, हमारी ढाल है। हम दुआ करेंगे आंटी नसरीन के साथ मिलकर इन सारी दरखास्तों के लिए कि खुदावंद अपना हाथ बढ़ाए और ज्यादा मजबूती बख्शे ताकि हम इस वर्ड सकें खुदा में मजबूती। हालेलुया। मैं पहले दरखास्त करूंगी प्रोबल से कि वो प्रोबल दुआ करें, फिर उसके बाद मैं दुआ करूंगी। प्रोबल जो है जी, वो जी। दुआ करें। चलें से ठीक है। हालेलुया। Praise God. तेरी सताइश हो खुदा। Yes. वादा किया है उसने, साथ छोड़ूंगा न मैं तेरा, सारी दुनिया चाहे छोड़ जाए, हाथ छोड़ूंगा न मैं तेरा। वादा किया है उसने, साथ छोड़ूंगा ना मैं तेरा, सारी दुनिया चाहे छोड़ जाए, हाथ छोड़ूंगा ना मैं तेरा। बस प्यारे न उसका बुलाना, सर कदमों में उसके झुकाना, तेरे साथ है मसीहा, बस आंखें उस पे लगाना, तूफानों से ना घबराना, मुश्किल में भाग न जाना, तेरे साथ है मसीहा, बस आंखें उस पे लगाना। हालेलुया। खुदा लश्करों की खुदा, हमारा ध्यान तेरी तरफ लगा हुआ है, हमारी तवज्जो तेरी तरफ लगी हुई है। खुदामन तू जो लश्करों का खुदा है, तू जो करूबियों पे सल्तनत करने वाला खुदा है, यीशु के नाम में खुदा तेरी हुजूरी को मांग लेते हैं। खुदामंद यीशु के नाम में सारे लोग मुत्तफिक होकर तेरी हुजूरी में झुकते हैं। खुदामंद यीशु के नाम में तेरी हुजूरी में आते हैं। पाकरू खुदामंद तू जो बादशाहों का बादशाह है, तू जो हमारा जोर है, तू जो हमारा मोहकम किला है, तू जो छड़ाने वाला, बचाने वाला, रहाई देने वाला, मखलसी देने वाला है, तू जो करूबियों पे सल्तनत करने वाला खुदा है, तू जो आसमान से नजर करते पताल की चीजों को जांच लेता है। हम तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हुए तेरे फाटकों में झुकते हैं खुदा, क्योंकि तुझी को सिजदे रवा है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरी मानद कोई नहीं है। तू अफजल है, तू आका है, तू मालिक है, तू रहबर है। खुदावंद हमारी जानों का लंगर है, तुम्हें बचाता है, चढ़ाता है, हमें मौत की तरीकियों से निकाल के बाहर खींच लाता है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सारी बातों के लिए यीशु के नाम में। खुदावंद जो दरखास्तें तेरी हुजूरी में रखी हुई है यीशु के नाम में, तेरे फजल वाले हाथ को मानता हूँ खुदा। मैं सारे मुतबीकों के खुदा इन दरखास्तों को तेरे बहते लहू में डिप करते हैं के नाम में। खुदावंद शफा का मंबा है, तू कहता है तो हो जाता है। खुदावंद तेरे कुल कहने से सब कुछ मुमकिन हुआ है। खुदावंद बाप तेरी हुजूरी में आते हैं खुदा, खाम हाफिज है खुदावंद, तो अपने लोगों की हलाकत नहीं चाहता है खुदा, बल्कि तू चाहता है कि हर एक जान तौबा करे। खुदा में तेरी हुजूरी में आते हैं
यीशु के नाम में जिंदगियों को तेरी हुजूरी में लेके आते हैं खुदा, जिनके लिए हम दवा कर रहे हैं खुदा, जो दरखास्तें तेरी हुजूरी में रखी गई है खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमारी दुआओं का जवाब दिया है खुदा, तूने हमारी दुआओं को सुन लिया है, तूने हमारी दुआओं पे कान लगा लिया है खुदावंद, कि तू अपने मांगने वाले को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता है खुदावंद। तेरे कहने से खुदा हवा थम जाती है, तूफान थम जाते हैं खुदा, तू कहता है तो मुर्दे जिंदा होते हैं खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तुझी को शुक्रगुजारी वाजिब है खुदा। यीशु के नाम में तेरा हाथ चाहते हैं पाकरू खुदावंद, तेरे फजल की वजह से हम तेरी हुजूरी में झुके हैं खुदावंद, और ईमान है कि जो कुछ हमने मांगा ईमान से पा लिया है खुदावंद। यीशु के नाम में हम सारे मुतफिकों को तेरी हुजूरी में झुकते हैं खुदा। यीशु के नाम में उन नौजवानों को तेरी हुजूरी में लेके आते हैं जो नशे की हालत में है, जो ज़िनाकारियों में है खुदावंद, जो तुझसे दूर है, जो तेरी मोहब्बत से परे है खुदा, उनको तेरी हुजूरी से मांग लेते हैं यीशु के नाम में खुदा। उन रूहों को जीतना चाहते हैं तेरे नाम से खुदावंद। यीशु के नाम में बिलाद जोड़ों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद। यीशु के नाम में तो अपना हाथ बढ़ा रूह कुदस खुदा। यीशु के नाम में तेरी हुजूरी यहाँ पे मौजूद है, तेरी हुजूरी यहाँ पे मौजूद है, तेरा साथ यहाँ पे लगा हुआ है खुदा। और आसमानी खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है, जो समुद्रों के सीनों को चीर देता है, जो आग की भट्टियों को ठंडा कर देता है, जो शेरों के मुंह को बंद करने की कुदरत रखता है। के नाम में तेरी हुजूरी में खुदा तूने ये खिदमत हमारे सुपुर्द की है, तूने दयानतदार जान के ये खिदमत हमारे सुपुर्द की है। फजल बख्श खुदा के इस भेड़े को उठाए खुदा, और तेरे लोगों को बचाए खुदावंद। यीशु के नाम में खुदावंद फजल बख्श दे खुदावंद। हम सबकी जानों को तेरे हाथों में देते हैं, जो जहाँ जहाँ पाओ खुदा ये दुआ सुनी जाए, ये मीटिंग देखी जाए, लोग बरकत हासिल करें। यीशु के नाम में आजादी मिले खुदा, तेरे कलाम के वसीला से आजादी मिले खुदावंद, वर्शिप के वसीला से आजादी मिले, दुआओं के वसीला से आजादी मिले। यीशु के नाम में खुदा होली स्पिरिट मिनिस्ट्री की खुदा हाथों को बढ़ा खुदावंद। लेकिन तेरी हुजूरी में आते हैं कंटिन्यूअसली फैमिलीज के ऊपर तेरा हाथ जाते हैं, कंटिन्यूअसली इनके खुदा बेटों पे तेरा हाथ जाते हैं, इनकी बहू पे खुदा तेरा हाथ जाते हैं, पूरी फैमिली पे तेरा हाथ जाते हैं, कंटिन्यूअसली की बेटियों पे तेरा हाथ जाते हैं। तेरी बरकत तेरी सलामती के हस्बैंड पे खुदावंद तेरा हाथ बढ़े रूह कुदस खुदा। आसमानी खुदा पास्टर क्या साहब को, इनके बच्चों को, इनकी मिसेस को, पूरे खानदान को तेरे पाक उनके पेट में देता हूँ यीशु के नाम में खुदावंद। तो अपने लोगों को संभाल, अपने आप को मारिया को खुदावंद, और जितने लोग हमारे साथ मुंसलिक है यीशु के नाम में तेरा हाथ बड़े रूह खुदावंद। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में पास्टर प्यास साहब को खुदा, पास्टर सिद्दीक साहब को खुदावंद, यीशु के नाम में बहन नीलम, बहन विशाल को, भाई को खुदावंद, भाई नूह को तेरे हाथों में देते हैं, बहन सारा, बहन सवेरा को तेरी हुजूरी में लेके आते हैं यीशु के नाम में। वो हम दूर है खुदा, लेकिन तेरी खुदा यीशु के नाम में फंस रहे हम तेरे नाम में खुदा, तेरे नाम के झंडे को लहराते रहे। तेरा पाक रूह हमें गाइड करता रहे, तेरा पाक रूह जो हमारा दूसरा मददगार है, हमारा अच्छा उस्ताद है, जो हमें तय की बात you will I prosper for something of this. Oh, holy, 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 करता है यहाँ पे मौजूद है। यीशु के ये दीप हमारे अंदर जलता रहे खुदा, जो तूने हमारे अंदर जगाया है खुदा। यीशु के नाम में हम तेरी रूहों को, तेरी हुजूरी की मिनिस्ट्री की हदों को बढ़ाओ खुदा, ईमानदार लोग मुहैया कर खुदा, दुआया ग्रुप बना, इस फैमिली को बढ़ा खुदा, ताकि हमारे बदनों से तेरा यीशु नाम इज्जत फिलहाल पाए खुदा। हम घटते जाए तो हमारी जिंदगी में बढ़ता जाए, तेरा रूह कुदस हमारी रहनुमाई करे खुदा, तेरा पाक रूह में सिखाए खुदा। तेरा बंदा यिर्मयाह रोता है, अपने लोगों के लिए हमको बहाता है खुदा। हमें फजल we are here, Lord, Father, अपने नाम की खातिर, अपने जिंदा जलाली नाम की खातिर, Father, that you do that. Oh, holy, 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, yes, Jesus, yes. खुदा अपने लोगों की
को तेरी उनके बदनों पे चाहता हूँ तेरे बेटे यीशु के नाम में हम आसमानी खुदा yes, जकड़े Lord, to pray आजाद हो for खुदा Pastor जो Dean. मेरा रवि के Oh, शिकार let हैं जो his जुए की heart be लातों में तेरे यीशु supernaturally के filled नाम with the Holy से Spirit, your Holy Spirit. आजाद We pray for a deal, मैं Father. Let रूह his heart be कुदस working normal, self खुदा cover them under the blood क्योंकि of Lord. तेरा Distribute them नाम आजादी supernaturally, देता Lord. है Your यीशु Holy Spirit नाम prays for आजादी them, Lord देता Jesus है Christ. के We नाम में give खुदा तेरी them शुक्रगुजारी करते शुक्रगुजारी हैं करते हैं. यीशु Yes, के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद तूने शुरू से लेके अब तक हमारी हिफाजत की है बाकी मंदा वक्त में भी संभालना जब हम दोबारा मिलते हैं खुदा तो यही मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर हो खुदा इस फैमिली को बढ़ा खुदा इस फैमिली के अंदर इसी तरह मोहब्बत कायम रखना और कुदस खुदावंद अबलीस के सारे जलते तीरों को बुझा कुदस खुदा Yes, जो Lord, हमारे yes, खिलाफ Lord. है खुदावंद Oh, जो send रब से your पाओ खुदावंद devouring हमसे fire पाओ from the heaven and यीशु devour के our नाम में enemies, खुदा Lord. जो हमसे We गलत काम cancel होते and हैं यीशु trample के over नाम में all तेरे of our enemies की into your रहनुमाई में powerful name हम of ठीक Lord करें Jesus खुदावंद Christ. यीशु के नाम में Oh, खुदावंद Jesus Christ. हमारी रविशों को ठीक करो रूह कुदस खुदा Yes, Lord, yes. Oh, yes, यीशु Jesus. के Thank नाम you, में तेरी Father. Amen. Thank you, Jesus. Thank you. Amen. तेरा इल्म Hallelujah. हिकमत का Hallelujah. शुरू है खुदा हमें अपनी Oh, हिकमत yes, से but भर दे खुदावंद yes, हमें अपनी Lord. Yes, हिकमत Lord. से Give भर us a दे ममूर कर discernment. दे पाक Give us खुदा a ताकि wisdom. Give तेरी us a हजूरी में knowledge. रोज Give us, नए oh, होते Father, जाएं we need your रोज wisdom. बढ़ते We need जाएं खुदा all the और तेरे knowledge come झंडे from you. को We seek हमेशा to you, Lord लहराते रहे Jesus रूह Christ. We are not खुदा safe for the तेरी शुक्रगुजारी oh, yes, करते हैं holy, तेरी holy. If शुक्रगुजारी करते you हैं have क्योंकि called तुझी your को servants in, शुक्रगुजारी Lord, that वाजिब है you have a खुदावंद praise petition for यीशु के नाम में खुदावंद for जिंदा तो हमारी दुआ पे जिंदा अपना खान लगा रूह कुदस खुदा Yes. छू और बरकत दे इसी यीशु के खूबसूरत नाम से मांगता और पा लेता हूँ आमीन Amen. Amen. Now we gather here, we pray for peace of Jerusalem, we pray for blessing, protection, salvation for nation of Israel's Father. We continue to pray for rebuke this COVID-19. We pray for India, Pakistan, where is we pray for the Father that you have mercy upon your people's Lord, whether they are believer or not believer, you have mercy upon them, Lord, heal them supernaturally, Lord. Your holy presence be with us all the time, Lord, and keep your fiery fence surround us all the time around our children, around our family members, Lord, and continue to be with us, Lord. Father, we continue to pray for that this COVID-19 be gone into your powerful name of Lord Jesus Christ. Heal your people supernaturally, heal the children supernaturally, Father. We are asking that have mercy upon the people, have mercy upon the people, have mercy upon the people. You open their spiritual eye, have them encounter, so they can have encounter for the salvation's sake, that you heal them supernaturally now in your powerful name of Lord Jesus Christ, that you hear our prayers and petition be accepted in the throne of praise for your kingdom's sake, for glorious name's sake. Amen. 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 Hallelujah. Praise you, Lord Jesus Christ. Thank you. अब हम खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर तू है, जो आसमान पर तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही तेरी आए, बादशाही आए, जैसे तेरी मर्जी से आसमान Kadna पर bhai kad merge जमीन das पर asman ke se kabir tu पर भी हो, हमें zmin रोज tak रोटी diya आज हमें दे, hamare roz और ke जिस bachiyat तरह हम mein अपने saas कर्ज करते हैं जिस हम apne ये समय मत ko कर माफ करते तुम्हारे कर्ज हमें बख्श मैं आजमाइश हमें में तुम्हारे न दे, बल्कि मैं बुराई से बचा, तेरे बादशाही हल्के में बख्श बड़ा सा बच्चा सूरत है कि इस्लाम बादशाह को दुख आमीन। चला हमेशा हमेशा ते आमीन इस्लाम आमीन की बात हम भाई के साथ अदा करेंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की फ़ाकत और शफ़क़त तमाम मुक़द्दसीन के साथ, होली सिटी मिनिस्ट्री के साथ और हाज़िर जमात के तमाम खानदानों के साथ और जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनके खानदानों के साथ अब्दुल आबाद और हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। आमीन। खुदा बाप, खुदा आमीन आमीन बाबा अब आप खुदा बेटे खुदा रोल कुछ के नाम में बेटे खुदा रूह कुदूस के नाम से खुदा God bless you all, God bless us all, bless other peoples and many who will hear it, everybody's, all human beings. Amen.